ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، بھارت کے بدلتے ہوئے ہندوتوا ذہنیت کے حامل دہشت گرد چہروں کو اور ان کی سوچ کو آپ یہاں ہماری ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر جو ہے حیوانیت پر اتر آئے ہیں یہ لوگ۔ داڑھی ٹوپی دیکھتے ہی عداوتوں کی انتہا ہو جاتی ہے، آسانی سے بات کر سکتے ہیں لیکن حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جگہ ٹرین کا نام وغیرہ کچھ نہیں ہے، لیکن اس ویڈیو پر الگ الگ قسم کے تبصرے سوشل میڈیا پر شروع ہو چکے ہیں۔ واٹس ایپ میں کئی ہزار لوگ دیکھ کر کے ہندوتوا لوگوں کی گنڈا گردی کو اور ان کی ذہنیت کو لے کر کے تبصرے کر رہے ہیں۔ ایک ٹرین میں ایک شخص شاید غلط سیٹ پر بیٹھ گیا تھا، اس کو لے کر کے ایک شخص اس سے پوچھنے کے بجائے سیدھے اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ لوگوں نے لکھا کہ معاملہ اتنا آسان تھا کہ اس پر حملے کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ شخص داڑھی اور ٹوپی پر تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس درندے نے اس پر حملہ کیا، اور سب سے افسوسناک معاملہ یہ ہے کہ جو ہے اس کو کوئی روک نہیں رہا ہے، اس درندے کو، اس حیوان قسم کے آدمی کو۔ یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ متعلقہ شخص کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور تب تک اس ویڈیو کو شیئر کیا جاتا رہنا چاہیے۔ آئیے ناظرین گرامی، ایک اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں، اتر پردیش کے متھرا میں ان ہندوتوا ذہنیوں کے بجرنگ دل کے گنڈوں نے کس طرح سے جو ہے اس وقت ماحول کو پراگندہ کر رکھا ہے، اور کس طرح سے یہ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ پولیس کو جو کام کرنا چاہیے، کسی کو اعتراض ہے تو اس کو کام کرنا چاہیے، لیکن یہ درندے اس وقت کھلے سانڈوں کی طرح کسی بھی دکان میں گھس جاتے ہیں اور پھر جو ہے اپنے گنڈا گردی اور دہشت گردی کو عام کر دیتے ہیں۔ ایک بھگوا جھنڈا ہاتھ میں لیے اور گلے میں بھگوا کچھ گمچھا ڈالے ہوئے یہ لوگ اس وقت جو ہے انتہا کر رہے ہیں دہشت گردی کی، کہتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کیا گیا ہے۔ جو ویڈیو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وی ایچ پی بجرنگ دل کے لوگوں نے یا کارکنان نے یا ٹھگوں نے یا پھر گنڈوں نے جو ہے متھرا کی اتر پردیش کی متھرا میں اور جو ہے میٹ کی دکانوں میں، گوشت کی دکانوں میں گھس کر کے جبرن ان کی دکانیں بند کرنے اور گوشت فروخت نہ کرنے کے لیے دباؤ بنا رہے ہیں اور گنڈا گردی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں۔ دیکھیے کس طرح سے ایک اور علاقے سے آئی ہے، یہاں پر بھی یہ بھی متھرا کی ویڈیو بتائی جا رہی ہے، جہاں پر ہندوتوا تنظیم سے وابستہ کچھ لوگ یہاں پر ایک مسلم نوجوان کو جہادی کہتے ہوئے ان کو قتل کرو اور اس طرح کے نعرے لگاتے ہوئے گھس گئے، اور جبکہ لو جہاد کا الزام لگا رہے تھے۔ پولیس کے انویسٹیگیشن کے مطابق، تحقیقات کے مطابق گزشتہ 2 سال سے یہ لوگ جو ہے وہ دوستی میں تھے، اور دوستی تھی لیکن اس کے باوجود لو جہاد کا الزام مسلم لڑکے پر لگایا، اور پھر جو ہے اس کے گھر کے قریب وہاں جا کر کے بری طرح سے حالات کو بے قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں کہ کس طرح کی صورتحال یہ لوگ بناتے ہیں۔ ان جہادیوں کا انتظام کرنا شروع کرو، جہاں رہ رہے ہو سالوں کو مارو وہیں اور وہیں توڑو، کیونکہ ان کی ہمت ہمارے دوگلے ہندوؤں کی وجہ سے بڑھ رہی ہے۔ جنم بھومی سے آدھے کلومیٹر پہ اتنی ہمت سے لے کھڑے ہیں اور سادھوواد ہے ایسے ہندو بھائی کو جس نے یہ سوچنا ملتی ہمیں دی، اور ہم برجواسیوں سے اپیل کریں گے کہ اگر آپ اس طرح کی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اسے بالکل بھی نظر انداز نہ کریں، کیونکہ آج ہو سکتا ہے کسی باہر کی بیٹی ہو، یہ چنگاری لگی ہے اور آپ کے گھروں تک آگ پہنچنے میں دیر نہیں لگی۔
कल आज हम लोग ये काम कर रहे हैं, आपको मदद करनी चाहिए। अगर आप मदद करेंगे तो हो सकता है आपके परिवार में बहन बेटी बचे। 112 यहाँ बुलाई गई है, 112 डायल करके उत्तर प्रदेश पुलिस मौके पर मौजूद है, चौकी से प्रशासन मौके पर मौजूद है, अभी कोतवाल साहब भी पहुंच रहे हैं। और हमारे क्षेत्र की हमारे हिंदू भाइयों के लिए पैसा इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि अपने ही हिंदू होटल में और अपनी बहन बेटी के साथ एक मोमडन को रुका रहे हैं, तो ये भी तो एक शर्म की बात है बहुत बड़ी। इनको भी तो सोचना चाहिए, पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इज्जत भी इम्पोर्टेंट होती है उसके लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको सूचना पुलिस को देनी चाहिए। नजदीक ग्रामी, आइए एक और खबर की जानिब आपको बढ़ता हूं। देखिए, इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि एक रिक्शा खड़ा हुआ है और कुछ लोग एक बॉडी को ई रिक्शा में लाते हैं और एक जगह फेंक करके चले जा रहे हैं, और ये सब के सब पुलिस अफसरान हैं। अब आप अंदाजा लगाइएगा कि पुलिस अफसरान ई रिक्शा में एक लाश को ला करके फेंक रहे हैं। वजह क्या है भाई? दरअसल पुलिस किस कदर अपने काम से चोरी करती है और क्या चीज है उसको समझने के लिए वीडियो देखना है। और यूपी में कुछ भी हो सकता है, इसके लिए भी ये वीडियो आप आराम से देख सकते हैं। लापता लाश एक जगह मिली थी ई रिक्शा में, अपने सर से ये, अब जाहिर सी बात है, अब लाश मिलती है तो ढूंढना है, उसके लोगों को खोजना है, उसके बारे में सारा कुछ जो है पेश करना है। क्यों अपने इसमें ले ले, तो दूसरे पुलिस थाने के जो है मातहत में जुरिडिक्शन जिसको कहा जाता है, वहां ला करके पुलिस अफसरान वो लाश फेंक रहे हैं ताकि उसके सिलसिले में तहकीक उनके सर पर आए और ना ही किसी तरह का काम उनके सर पर आए, और दूसरे स्टेशन के लोग ये सारी तहकीक करें। इस वीडियो को शेयर करते हुए यूपी पुलिस को एक बार फिर आड़े हाथ लेने की कोशिशें हो रही है। उधर नाज़रीन गिरामी, वालिदैन को जब अपने खवातीन या लड़कियों को या तलबा और तालिबात को बाहर भेजते हैं पढ़ाई के लिए, आला तालीम को लेकर के, तो इस मर्तबा बहुत ज्यादा सोचना होगा, क्योंकि अखलाक और किरदार की गिरावट इस कदर नीचे आई हुई है। और इस वक्त सोशल मीडिया और ये सारी चीजों ने इस वक्त हर चीज को खुला खुला, जाहिर सी बात है पहले ये सारी चीजें शायद वालिदैन के सामने नहीं आती होंगी, ज्यादा से ज्यादा टेलीफोन कर लिया करते थे। मामला ये है कि कोई चीज ढकी छुपी नहीं होती, आप कमरे के अंदर भी है तो वहां की चीजें भी इस वक्त लोग उसको वीडियो बना करके वायरल कर रहे हैं। भरे बाजार में अगर आप झगड़ा करने लगेंगे, कितने ऐसी वीडियोस वायरल हुई बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर के, जहां पे लड़कियां पढ़ने के नाम पर आती हैं, वो ड्रग्स लेती है, इंजेक्शंस लेती है, क्लब में जाती है, नंगा नाच करती है, हंगामे मचाते हैं रास्ते में अपने मेल और फीमेल फ्रेंड्स के साथ। अभी अमिटी यूनिवर्सिटी की खबर आ रही है कि यहाँ पर एक शख्स के लिए दो लड़कियां आपस में भिड़ गई, और वीडियो बनाने वाले ने उस वीडियो को बना करके सोशल मीडिया में वायरल कर दिया लोगों ने। और जाहिर सी बात है कि एक संजीदा तबके रखने वाला, सोच रखने वाला इस वीडियो को जो है इस वक्त आजकल जिस तरह से लड़कियों की ये सारी चीजें आ रही है, तलबा और तालिबात को, एमिटी यूनिवर्सिटी से सामने आने वाली चीज है। तो इस चीजों को पेश करते हुए सोशल मीडिया में लिखा गया कि जब अपने बच्चों को बाहर बड़े शहरों में उम्दा डिग्री, आला डिग्री हासिल करने के लिए भेज रहे हैं, तो उनके अखलाक और किरदार पर भी नजर रखें। कहीं ऐसा ना हो कि जो है आला तालीम और उम्दा तालीम के नाम पर आपकी औलाद आपके हाथ से निकल जाए। एक और वीडियो आई है नाज़रीन गिरामी, एक शख्स गले में अपनी बेटी और बीवी के फोटो का जो है पोस्टर लगाए हुए है। ये यूपी के वाराणसी का बताया जा रहा है, और वाराणसी तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का हल्का असेंबली है, बल्कि पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी है। उसकी बीवी भी लापता है, बेटी भी लापता है। छोलापुर पुलिस स्टेशन में इस मामले को जो है दर्ज किया गया है, लेकिन वहां की इंचार्ज को पता ही नहीं है कि क्या है चीज, और एफआईआर किस चीज के लिए दर्ज की गई है। वो शख्स शिकायतें करते करते इस वीडियो को बना करके वायरल कर दिया है। पुलिस को जो काम करना है वो काम नहीं कर रही, जो नहीं करना है वो कर रही है, और लोग ऑब्जेक्शन कर रहे। जैसे मैंने कहा कि आजकल कोई बात ढकी छुपी नहीं रही। आप इस वक्त ये कि वो गरीब है इस वजह से उसके केस को ज्यादा नहीं देखेंगे, उसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आप नाइंसाफी कर रहे हैं तो किसी न किसी एतबार से उसको मंजर आम पर लाया जा रहा है। एक वो लाश छुपाने की खबर, एक दूसरे इलाके में फेंकने की खबर, और दूसरी जानिब ये
इसको लेकर के एक दूसरी वीडियोस को शेयर करते हुए सोशल मीडिया में यूपी पुलिस की खिंचाई हो रही है। नाज़रीन गिरामी, आइए सहारनपुर के मेयर डॉक्टर अजय कुमार है, इस वीडियो में आपने जो देख रहे हैं अजय कुमार सिंह, उनको कंप्लेंट मिला कि खातून नजराना जिसका नाम है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस में अपने डेट ऑफ बर्थ को दुरुस्त कराना चाहती थी, यानी पैदाइशी तारीख को, लेकिन वहां मौजूद एक शख्स उससे बार बार रिश्वत पूछ रहा था सिर्फ इतने काम के लिए। तो फिर उसके बाद वो मेयर के पास जाकर के उसकी शिकायत कर दी। तो मेयर खुद वहां पर पहुंचा और जो शख्स रिश्वत पूछ रहा था उसका नाम सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार से जब मेयर ने पूछा कि ऐसे क्यों किया, तो वो कुछ कागजात को वहां गुम करने की कोशिश की। जब ऑब्जेक्शन किया गया तो वो मेयर पर ही उल्टे रोब झाड़ने लगा। तो फिर जो है मेयर ने उसको खींचकर सामने लाया। तो ये जहां के सरकारी अफसरान के हालात है। नाज़रीन गिरामी, आप अगर आधार कार्ड में नाम चेंज करना चाहते हैं तो रिश्वत दीजिए, आप अगर जो है अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हैं तो रिश्वत दीजिए, नाम चेंज करना चाहते हैं, स्पेलिंग चेंज करना चाहते हैं तो दीजिए। ये जो हुकूमत की जानिब से आने वाली सारी चीजों ने लोगों की चांदी खोल रखी है। हर कोई हर एतबार से इस वक्त आवाम को लूटना चाहता है। ये कहते हुए इस वीडियो को भी शेयर किया गया है। नाज़रीन गिरामी, एक और वीडियो आई हुई है और बताया जा रहा है कि टीएमसी एमएलए हुमायूं कबीर ने ऐलान किया था कि वो बाबरी मस्जिद बनाएंगे, और फिर जो उसका ऐलान किया था उसके बाद जो सूरत हाल बनी, और इस पर मैंने तबसरा भी कर चुका हूं कि बेकार में ये दुश्मनों को छेड़ने वाली बात है। बैकैफ अब उनको उस पार्टी से तो निकाल दिया गया है, लेकिन वो अपने जो है इरादे में बड़े मजबूत नजर आ रहे हैं। आज उस जगह पर जहां पर एक कार्रवाई थी वहां बहुत सारे लोग जमा भी हुए, और देखिए कितने बड़े पैमाने पर इस नाम पर चंदा भी लोग दे रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोगों ने अब अलग अलग तबसरे करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन जहां तक हमें समझ में आता है कि ये ठीक नहीं है। बेलडांगा नामी एक इलाका है बंगाल का, वहां पर जो है हुमायूं कबीर ने इस मस्जिद के बनाने का, तामीर करने का ऐलान किया था। नाज़रीन गिरामी, दूसरी तरफ एक मंदिर में होने वाली झड़प की भी एक वीडियो हमारे सामने आई है। यूपी के मिर्जापुर मां वैष्णव विंध्यावासिनी धाम नामी इलाके में अकीदतमंदों के दो ग्रुपों ने लाइन काटने को लेकर के, दर्शन के लिए जो लाइन कटी थी, कोई आदमी के बीच में घुस जाने को लेकर के लगातार जो है इस वक्त एक दूसरे पर हमले होने के मनाजिर भी सामने आए हैं। तो नाज़रीन गिरामी, यही है पूरे भारत की कहानी जो जमीनी सतह पर है। मीडिया जो आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहा है वो अलग कहानी है, लेकिन जमीनी सतह की ये है कि यहाँ पर खींचातानी, जराइम और जो है हर तरफ इस वक्त जो है सूरत हाल खतरनाक होती जा रही है। नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।